Hello students, first of all I welcome all of you to Shaheen Group of Institutions. Uh, all of you completed your second PU, anyhow the exams cancelled, theory exams. But the real success is NEET success. If you get good rank, if you get government medical seat, that is the real success. Okay, theory exam में 80%, 90%, 100 of 100 मार्क्स आना, ये सब आपको टेम्पोररी खुशी दे सकते हैं, बट रियल सक्सेस जो है गेटिंग ए गुड रैंक इन नीट एग्जाम, गेटिंग ए गवर्नमेंट मेडिकल सीट, ये है रियल सक्सेस. करेक्ट. सो ऑल ऑफ यू ज्वाइन शाहीन क्रैश कोर्स. सो लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग क्रैश कोर्स. क्या एडवांटेज हम ले सकते हैं ये प्रोग्राम से. नंबर वन थिंग, ऑलरेडी you completed this course 11th and 12th in your regular classes. Now if you go from the NEET point of view, a fast recapitulation, recall whatever the points you studied earlier, if you recall the things fast, अगर हम पूरा recapitulate करेंगे तो एग्जाम में जाके अच्छे से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. we will get good marks, right? So if we talk about biology overall, 38 chapters are there 11th and 12th. और ये जो हमारा क्रैश कोर्स मटेरियल है, इस क्रैश कोर्स मटेरियल में अगर आप देखेंगे दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्लास असाइनमेंट एंड होम असाइनमेंट. ठीक है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. क्लास असाइनमेंट, होम असाइनमेंट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतने अगर आप क्वेश्चन कर लेंगे प्लस एनसीईआरटी बुक अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, दैट्स एनफ टू गेट गुड मार्क्स, है ना. बायो में अगर आप टारगेटेड हैं 330 मार्क्स, 340 मार्क्स, you can all do that, but just by reading NCERT, just by reading this crash course material. correct. इसमें 3 लेवल के क्वेश्चंस हैं, क्लास असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इतने गुड क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं ये कि सेम नीट एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हैं. ओके, सो नाउ वी कैन स्टार्ट लिविंग वर्ल्ड. जैसे आप शेड्यूल में देख सकते हैं, टुडेस फर्स्ट टॉपिक लिविंग वर्ल्ड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. करेक्ट, लिविंग वर्ल्ड. So in living world, first we go for characteristics of organisms like growth. Characteristic like growth. Whether growth is a character of living organism, whether it is a defining character of living organism. Growth is not a defining character of living organism. Because growth can also occur in mountains. Mountains also grows. Right, mountains also grows because of deposition of material from outside. एक्सट्रेंसिक ग्रोथ बोल सकते हैं उसको, एक्सट्रेंसिक ग्रोथ. माउंटेन्स हैव एक्सट्रेंसिक ग्रोथ. लिविंग थिंग्स हैव व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ? लिविंग थिंग्स हैव इंट्रेंसिक ग्रोथ. नॉन लिविंग थिंग्स हैव एक्सट्रेंसिक ग्रोथ. व्हाट इज ए ग्रोथ? Growth is irreversible increase in size, dry weight of the organism. If dry weight of the organism, size of the organism increases, that is called growth, and it will be irreversible increase. Plants are growing continuously, indefinite growth in plants, indefinite growth in plants. लेकिन एनिमल्स में आपको कौन सा ग्रोथ मिलेगा? एनिमल्स आर हैविंग डेफिनेट ग्रोथ. एनिमल्स हैव डेफिनेट ग्रोथ. ओके, ग्रोथ ओनली अप टू ए सर्टेन एज. ग्रोथ ओनली अप टू ए सर्टेन एज इन केस ऑफ एनिमल्स. प्लांट्स ग्रोथ कैन आल्सो बी मेजर्ड. प्लांट ग्रोथ आप मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट axonometer. Plant growth can be measured by using the instrument axonometer.
So I can say growth is not a defining character of living organism, because non-living things are also growing and living things are also growing. When you open the chapter living world, first thing is given growth. Growth is not a defining feature of organism, because non-living things are also growing due to deposition of material from outer side. Living things are also growing due to deposition of material from inner side, due to addition of tissues from inner side, right? This is about growth. After growth, now we can go to next character of living organism, reproduction. रिप्रोडक्शन देखेंगे. याद रखिए, reproduction is the ability of an organism to have their own kind of offsprings. Ability of the organism to have their own kind of offspring is reproduction. Can I say only living things reproduce? Yes, only living things are reproducing. living things reproduce. ठीक है. Can I say reproduction as a defining character? No, I cannot say. Not defining character. Not defining character of living organism. डिफाइनिंग कैरेक्टर का मतलब होता है इट्स कंपल्सरी, इट शुड बी प्रेजेंट, absolutely present in all living organism. But reproduction is not compulsory for all living organism. There are some sterile humans also. Sterile organisms हो सकते हैं. Sterile organisms mean they are not reproducing. जैसे mule है, mule is obtained by crossing horse and donkey. This mule is sterile. So I cannot say reproduction as defining character of living organism, because even there are certain organisms which are not reproducing but they are still called living. Mule is a still living organism, but it is not reproducing. Worker honeybees, they are वर्कर हनीबीज जो हैं ये भी स्टेराइल हैं. वर्कर हनीबीज स्टेराइल हैं. फीमेल हनीबीज होते हैं वर्कर हनीबीज, right? And they are not at all reproducing. Only queen is reproducing in the honeybee colony. I think all of you know. There are some sterile humans also. There are some humans not having their own progeny. उनके खुद के कोई individual, they are not having their offsprings, but they are still called living organisms. Correct? Reproduction, therefore, I can say it is not a defining character of living organism. Then what are the defining character of living organism? अगर हम defining character की बात करेंगे, defining character of living organism. There are three defining character. Number one is metabolism. Metabolism is a defining character. Cellular organization is a defining character. Cellular organization is a defining character. And then consciousness is also a defining character. Three defining character of living organism present in living things. Metabolism means it include set of all reactions in living tissues. आपके सेल्स में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, these are all metabolic reactions, right? Cellular organization, whether cellular organization is present in all living organism? No. Viruses are not having cell. वायरस को सेल नहीं है.
That means I can say cellular organization is defining character of all living organism, but there are some exceptions. Viruses not having cell, still they are coming under the living category. कॉन्शियसनेस देखो, कोमा पेशेंट्स हैं, ब्रेन डेड पेशेंट्स बोलते हैं इनको, ब्रेन डेड. Coma patient, they are surviving based on the machines. Their heart, their lungs are replaced by machines. हार्ट का काम मशीन्स कर रहे हैं, लंग्स का काम मशीन कर रहे हैं. तो ऐसे पेशेंट जो कोमा पेशेंट्स हैं, ब्रेन डेड पर्सन हैं, दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस. ये एक्सेप्शन बता रहा हूं मैं, देखिए. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट कोमा पेशेंट्स. Cellular organization is present in all living organism, exception viruses. Viruses are not having cellular organization. Metabolism की अगर हम बात करेंगे, metabolism is present in all living cells without any exception. No exception for metabolism. Metabolism is absolutely necessary for every living organism. Okay, clear है ये? नेक्स्ट जाइए. अब देखिए यहां पर ये मेन चैप्टर में जो बात होने वाली है, व्हाट इज टैक्सोनॉमी, व्हाट इज सिस्टेमैटिक्स, व्हाट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, लीनियर हायरार्की, ये सारे चीजें हैं चैप्टर में. देखिए नंबर 1 थिंग, सिस्टेमैटिक्स. व्हाट इज मीन बाय सिस्टेमैटिक्स? The word systematics coined from the word systema. Word systematics taken from the word systema. Systema का मतलब है systematic arrangement of organism. Systematic arrangement of organism is called systema, right? And systematics का मतलब है it deals with the study of diversity of organisms. Diversity, systematics deals with the study of diversity of organism plus evolutionary relationship. Evolutionary relationship also. ठीक है. सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लस evolutionary relationship. We also find out how they are related from evolutionary point of view. ये systematic होता है. Then what is meant by taxonomy? Taxonomy क्या है ना? Characterization. Taxonomy deals with study of characterization, identification, nomenclature and classification of organisms. What we do in taxonomy, first of all we characterize the organism. First we look at the organism and we study their characters, and we identify that organism in local language, regional language. Say for example, what is the name of that plant or animal in regional language, and after that we give its scientific name, and we write their classification completely. It belongs to which kingdom, which phylum, which class, which order. Every organism study is done in taxonomy in detail account. Organisms are divided into different groups, just like mammalia group. Mammalia is a group of organisms, animals on earth, which are having hairs, which are having pinna, which are having mammary glands. Okay, just take down all these key points and आप notes maintain करते रहिए. Okay, mammalia means all those animals which are having these 3 characters. hairs हैं, अगर किसी एनिमल को हेयर्स हैं, पिन्ना है, मेमेरी ग्लैंड है, तो सीधे उसको मैमेलिया ग्रुप में रख देना चाहिए. मैमेलिया क्लास बोलते हैं इसको, मैमेलिया क्लास.
Tiger, lion, humans, all they are belonging to Mammalia class. Then what is mean by class Insecta? Class Insecta means all those animals which are having 3 pairs of legs. अगर अर्थ के ऊपर कोई भी एनिमल है और उसके 3 pairs of legs हैं, कंपल्सरी दे आर बिलोंगिंग टू इंसेक्टा. 3 pairs of leg हैं तो इंसेक्टा कंपल्सरी. It's absolutely necessary that 3 pairs of legs for insecta group. Okay, now we will see what is mean by binomial nomenclature. Binomial nomenclature is introduced by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus introduced binomial nomenclature. It is a scientific method of giving names to the living organism in Latin language. कौन से लैंग्वेज में लिखेंगे नाम? लैटिन लैंग्वेज में नाम लिखेंगे. ओके, एंड द सेकेंड थिंग, it will be uniform. Uniformity throughout the world. Throughout the world. ठीक है. से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पैंथेरा लियो लिख रहा हूं, पैंथेरा लियो का मतलब है लॉयन. जो लॉयन नेम है ये इंग्लिश नेम है. रीजनल नेम कुछ भी हो सकते हैं. हिंदी नेम विल बी डिफरेंट, कन्नड़ा नेम विल बी डिफरेंट, मराठी डिफरेंट, डिफरेंट लैंग्वेजेस, तेलुगु डिफरेंट, कई नेम्स हो सकते हैं एक ही एनिमल के लिए. लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो, एंड द वर्ड पैंथेरा लियो इज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज. लैटिन लैंग्वेज से लिया जाएगा ये नेम पैंथेरा लियो, एंड इट विल बी यूनिफॉर्म थ्रू द वर्ल्ड. गो फॉर एनी कंट्री, कौन से भी कंट्री में जाइए, पैंथेरा लियो मीन्स लॉयन ओनली. ठीक है. रीजनल लैंग्वेज अलग अलग हो सकते हैं, बट साइंटिफिक नेम आर गोइंग टू बी सेम थ्रू द वर्ल्ड. एंड ऑलवेज इन साइंटिफिक नेम फर्स्ट वी राइट द जीनस नेम and then we write the species name. It's a rule. First to write genus name and second to write a species name. Okay, and sometime we write author name also. Mangifera indica, Mangifera indica LINN. So here Mangifera is genus name, indica is a species name, and LINN stands for author name. Author name is written in abbreviated form. Author name is written in abbreviated form. शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा ऑथर नेम. लीनियस ने ये वर्ड दिया था मैंजीफेरा इंडिका फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, then we will take some of the examples of binomial nomenclature. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के एग्जांपल्स लेंगे. जैसे कि वीट है, अगर वीट है तो उसका साइंटिफिक नेम जाएगा ट्रिटिकम असटाइवम. ट्रिटिकम असटाइवम है. राइस है तो ओराइजा सटाइवा है इसका साइंटिफिक नेम. हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम होगा मस्का डोमेस्टिका. डोमेस्टिका. फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम जाएगा ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर. मेलानोगैस्टर. ब्रिंजाल है, इसका साइंटिफिक नेम होगा सोलानम मेलोनजीना. सोलानम मेलोनजीना, करेक्ट. और नेक्स्ट है ब्रिंजाल के बाद जो है देखिए मैकोई प्लांट बोलते हैं. मैकोई, मैकोई प्लांट. मैकोई प्लांट का नाम जाता है सोलानम निग्रम. करेक्ट.
पोटैटो का साइंटिफिक नेम जाएगा सोलानम ट्यूबरोसम. One thing you can note here, Solanum is common for brinjal, makoi plant and potato plant. Solanum name is going to be common in all these scientific names. ये तीनों साइंटिफिक नेम में सोलानम कॉमन आ रहा है, मतलब ये तीनों प्लांट का जीनस सेम है. ब्रिंजाल, मैकोई प्लांट, पोटैटो प्लांट, इन तीनों की जीनस नेम सेम आ रही है. स्पीशीज नेम इज गोइंग टू बी डिफरेंट. मेलोंजीना, निग्रम, ट्यूबरोसम, ये स्पीशीज नेम अलग अलग हैं. ओके चलिए, तो ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में और देखिए, पैंथेरा, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, पैंथेरा पार्डस. So here also Panthera is going to be same. All the three Panthera same है, genus same आ रही है, species name अलग अलग आ रहे हैं. ये lion है, ये tiger है, ये leopard है. Okay, it's compulsory that we have to write first genus name with capital letter, species name with small letter, and we can write author name also, but it is not compulsory. Okay, now what is very very important for NEET exam, what is mean by tautonyms? Tautonyms क्या होंगे? Tautonyms का मतलब है the scientific name in which genus name and species name both are same. If genus and species name are going to be same, we call it tautonym. Say for example, Katla, Katla. Katla, Katla, it is a fish. Edible fish है ये. Edible fish है. टाउटोनिम आ रहा है. जीनस नेम और स्पीशीज नेम दोनों सेम आएंगे तो टाउटोनिम. नाजा, 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 नाजा क्या है ये? कोबरा, कोबरा स्नेक है. It's also tautonym. So tautonyms are used only for zoological nomenclature. Plants में नहीं होते tautonyms, ठीक है. Tautonyms सिर्फ zoological nomenclature में होते हैं. There are two main system of doing nomenclature. One is ICBN, one is ICZN. What is ICBN? International Code for Botanical Nomenclature. इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर है. और ICZN क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर zoological nomenclature. Just like in chemistry you use IUPAC system to name the living organism, in the same way tautonyms में हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे nomenclature of living organisms में rules are given by ICBN and ICZN. ये rules बनाएंगे, set of rules to give scientific names to the plants and animals. Botanical nomenclature, zoological nomenclature बोल के दो nomenclature system है. Okay, after knowing all these things, now coming to the main topic, chapter में जो main दिया हुआ है, लीनियन हेरारकी. लीनियन हेरारकी क्या है? लीनियन हेरारकी का मतलब है, कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं कैरोलस लीनियस को. एंड लीनियस हैज गिवन 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज लाइक किंगडम, फाइलम, class, order, family, genus, species. जब आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ आ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी डिसेंडिंग ऑर्डर. कौन सी ऑर्डर में है ये? डिसेंडिंग ऑर्डर में है. इट इज डिसेंडिंग ऑर्डर. When you go from kingdom to species, it is called descending order. When you go from species to kingdom,
इट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन अगर है व्हाट इज द लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो किंगडम बोल के आंसर लगाइए। किंगडम इज लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है स्पीशीज, स्पीशीज इज गोइंग टू बी स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। जब हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ जा रहे हैं तो कैरेक्टर्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर सिमिलर। यस, किंगडम टू स्पीशीज, के टू यस, किंगडम टू स्पीशीज क्या होगा, कैरेक्टर्स बिकम मोर एंड मोर similar. Yes, similarity increases when we move from kingdom to species. किंगडम से स्पीशीज की तरफ आएंगे, कैरेक्टर्स बिकम मोर एंड मोर सिमिलर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। किंगडम से स्पीशीज की तरफ आ रहे हैं तो कैरेक्टर्स ज्यादा सिमिलर हो रहे हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, सिमिलैरिटीज डिक्रीजेस। स्पीशीज से आप किंगडम की तरफ जाएंगे तो सिमिलैरिटी डिक्रीज होते जाएगी, और किंगडम से स्पीशीज की तरफ आएंगे तो कैरेक्टर सिमिलैरिटीज बढ़ते जाएंगे। व्हाट इज द लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, किंगडम। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, स्पीशीज। ओके, क्लियर है। ये एक याद रखो, स्पीशीज क्या है, स्पीशीज इज द लोएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, लोएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, सबसे नीचे लिखा जाता है स्पीशीज को। द टर्म स्पीशीज वाज कॉइन्ड बाय जॉन रे, जॉन रे कॉइन्ड द टर्म स्पीशीज, coined the term species. Okay, John Ray coined the term species. And the biological concept of species, biological concept of species was first time given by Ernst Mayr. Ernst Mayr ने दिया था biological concept of species. Ernst Mayr is also known as Darwin of 20th century, क्योंकि इनके डिस्कवरीज बहुत मेन थे। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोले इसको, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी अर्नस्ट मेयर को बोले हैं। अर्नस्ट मेयर वाज अवार्डेड बाय ट्रिपल क्राउन प्राइज ऑफ बायोलॉजी। ट्रिपल क्राउन, विच साइंटिस्ट वाज अवार्डेड विथ ट्रिपल क्राउन प्राइज ऑफ बायोलॉजी बोलेंगे तो आप अर्नस्ट मेयर का नाम लेना है। ट्रिपल क्राउन प्राइज ऑफ बायोलॉजी, जिनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी बोले हैं। और दिस अर्नस्ट मेयर का और एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, अर्नस्ट मेयर हैज गिवन कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, है ना, स्पीशीज का कॉन्सेप्ट दिए। देखिए टर्म स्पीशीज गिवन बाय जॉन रे, ओके, and the concept of species given by Ernst Mayr. According to Ernst Mayr, species means a group of interbreeding population present in a given area. A group of interbreeding population, ऐसा पॉपुलेशन जिसमें मेंबर जो है एक दूसरे से रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, दोज आर कॉल्ड interbreeding populations are called species. And the individuals of different species, अलग अलग स्पीशीज के अगर इंडिविजुअल्स लेंगे आप, हॉर्स एंड डोंकी, और लॉयन एंड टाइगर, मंकी एंड ह्यूमंस, तो ये क्या है, अलग अलग स्पीशीज हैं, दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं। हॉर्स एंड डोंकी इवन दो दे अंडरगो क्रॉस एंड प्रोड्यूसेस म्यूल, but then they are also not producing fertile offsprings. Mules are not fertile, remember mules are sterile, mules sterile होते हैं, ठीक है। स्पीशीज का कॉन्सेप्ट है इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन टू गिव फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, interbreeding population which gives fertile offspring is called species. Now we will see kingdom to species, kingdom to species for different groups of
एनिमल्स से फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाई के लिए लिखना है हमें, या ह्यूमन के लिए लिखना है. ओके, this arrangement of kingdom to species is called hierarchy, linear hierarchy. If you count number of categories, these are 7: kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. इनको बोलते हैं 7 obligatory taxonomic categories बोलते हैं इनको. 7 obligatory taxonomic categories. Obligatory means compulsory. ऑब्लिगेटरी कंपल्सरी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोल रहे हैं, 7 है. किंगडम, इफ यू राइट किंगडम फॉर ह्यूमन, ह्यूमन के लिए किंगडम लिखा जाएगा एनिमलिया. ह्यूमंस कम अंडर एनिमलिया किंगडम. फाइलम लिखा जाएगा ह्यूमन के लिए कॉर्डेटा, बिकॉज ह्यूमंस आर हैविंग बैकबोन, राइट. ह्यूमंस के पास बैकबोन है. एनिमल्स विद बैकबोन आर कॉर्डेटा. और फाइलम के बाद लिखा जाएगा क्लास. ह्यूमन की क्लास है मैमेलिया, बिकॉज ह्यूमंस हैव हेयर्स, पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर को बोल रहे हैं ना, पिन्ना, मेमोरी ग्लैंड्स, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड. क्लास के बाद ऑर्डर लिखा जाएगा ह्यूमन का. ऑर्डर इज प्राइमेटा. प्राइमेटा मीन्स अंडर द क्लास मैमेलिया, क्लास मैमेलिया में एक ऑर्डर आ रहा है प्राइमेटा. मैमेलिया तो क्लास का नाम है, उसके अंदर ऑर्डर है प्राइमेटा. क्लास के अंदर ऑर्डर है. एंड प्राइमेटा आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ग्रुप ऑफ मैमल्स. मोस्ट इंटेलिजेंट ग्रुप ऑफ विच इंक्लूड ह्यूमन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, लाइक दैट. क्लास, ऑर्डर. फैमिली कौन सी जाएगी ह्यूमन की? फैमिली नेम इज गोइंग टू बी होमिनाइडे. फैमिली इज होमिनाइडे. जीनस कौन सा रहेगा ह्यूमन का? होमो. जीनस इज होमो. एंड स्पीशीज नेम जाएगा ह्यूमन का सैपियंस. होमो सैपियंस हो गया ये, होमो सैपियंस. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस. ह्यूमंस क्लासिफिकेशन है ये, राइट. एंड रिमेंबर, एनिमल्स फैमिली नेम, हमेशा जो एनिमल की फैमिली नेम होती है, एनिमल फैमिली नेम end with suffix, end with suffix आइडे. एनिमल के फैमिली नेम हमेशा आइडे में खत्म होते हैं, आइडे से खत्म होते, सफिक्स आइडे, लास्ट वर्ड्स आइडे है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, कुछ फैमिली के नेम बताइए, एनिमल के फैमिली नेम. जैसे होमिनाइडे है, होमिनाइडे. ओके. इक्विडे, इक्विडे हॉर्स फैमिली होती है, हॉर्स की फैमिली होती है इक्विडे. ओके. होमिनाइडे, इक्विडे, म्यूजाइडे. म्यूजाइडे क्या होता है ना, हाउस फ्लाई फैमिली होती है, हाउस फ्लाई फैमिली, हाउस फ्लाई फैमिली है. सिमिलरली कैनिडे. देखो हमेशा सफिक्स आइडे आना चाहिए एनिमल के फैमिली में. कैनिडे, फेलिडे. कैनिडे क्या है ना, डॉग फैमिली है. फेलिडे कैट फैमिली होगी, कैट फैमिली. फेलिडे. ठीक है. थोड़े ऐसे वर्ड्स आपको ये चैप्टर में याद रखना है. इक्विडे, म्यूजाइडे, कैनिडे, फेलिडे, ऐसे नेम याद रखना है उनके मीनिंग के साथ. ओके, नाउ आई वांट टू राइट classification of housefly. If I want to write classification of housefly, kingdom is going to be same animalia. Phylum change हो जाएगा. housefly का phylum है arthropoda. Arthro means jointed, poda means leg. All those animals which are having jointed legs are coming under arthropoda. ठीक है. क्लास कौन सी आएगी? हाउसफ्लाई की क्लास आएगी इंसेक्टा. ठीक है. लास्ट के मैं आपको है ना 15 मिनट देने वाला हूं, जिसमें आप
अपने डाउट सेंड कर सकते हैं, चैट बॉक्स ऑन भी कर देता हूं मैं उस टाइम में। ठीक है, पहले क्लास अच्छे से सुन लीजिए, की नोट्स बना लीजिए आप पेपर पे। ठीक है, चलिए नोटबुक में। ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा। डिप्टेरा मीन दे आर हैविंग टू विंग्स। फैमिली इज म्यूजाइडे। जीनस इज मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका। दिस इज व्हाट हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन है। सो रैंडमली इन एग्जाम दे कैन आस्क एनीथिंग, है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ हाउस फ्लाई पूछ सकते हैं। व्हाट इज द फैमिली ऑफ हाउस फ्लाई पूछ सकते हैं। म्यूजाइडे। चलिए यहां पर एक दो क्वेश्चन आपके लिए जनरल पूछ रहा हूं मैं। व्हाट इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल? नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन सा है? एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एक्वाटिक बोलना, एक्वाटिक एनिमल बोलना है तो डॉल्फिन है इसका आंसर। डॉल्फिन्स आर कॉल्ड नेशनल एक्वाटिक एनिमल्स ऑफ इंडिया। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, हॉर्स। हॉर्स का ऑर्डर बताना है आपको। हॉर्स का ऑर्डर अगर आपको बताना है तो डोंट से इक्विडे। इक्विडे तो फैमिली होती है, इक्विडे फैमिली है। ऑर्डर बताना है आपको हॉर्स की तो बोलना पेरिसो। पेरिसो डक्टाइला। पेरिसो डक्टाइला। एनिमल के जो फैमिली नेम्स है बहुत ही आसानी से पहचाने जाएंगे। एनिमल के फैमिली नेम में हमेशा आइडे लगे रहेगा, सफिक्स हमेशा आइडे रहेगा एनिमल के फैमिली नेम में। बट हॉर्स का जो ऑर्डर नेम है पेरिसो डक्टाइला, पेरिसो डक्टाइला है। नाउ लेट्स राइट आफ्टर दिस, लेट्स राइट द क्लासिफिकेशन फॉर मैंगो प्लांट। मैंगो प्लांट का क्लासिफिकेशन लिखना है मुझे। तो प्लांट का क्लासिफिकेशन में मैं एक चीज चेंज करने वाला हूं। इन प्लांट क्लासिफिकेशन वी डोंट यूज द वर्ड फाइलम, वी यूज द वर्ड डिवीजन, किंगडम, डिवीजन। फाइलम का इक्विवेलेंट है, फाइलम का इक्विवेलेंट है डिवीजन। द टर्म डिवीजन, दिस टेक्सोनॉमी कैटेगरी डिवीजन इज यूज फॉर प्लांट क्लासिफिकेशन। किंगडम प्लांटे, मैंगो का लिख रहा हूं मैं, किंगडम प्लांटे। डिवीजन, डिवीजन कौन सा जाएगा देखिए, एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट को बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंड द क्लास इज गोइंग टू बी डाइकोटिलीडान्स। डाइकोटिलीडान्स, द सीड इज हैविंग टू कोटिलीडन, दैट्स व्हाई डाइकोटिलीडन। ऑर्डर कौन सा जाएगा देखिए इनका, सैपिंडेल्स, सैपिंडेल्स। और फैमिली नेम जाएगी इनकी अनाकार्डियेसी, अनाकार्डियेसी। और जीनस नेम क्या है मैंगो का, मैंजीफेरा। और स्पीशीज नेम है इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। ओके, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैंगो। रिमेंबर प्लांट ऑर्डर नेम, जो प्लांट का ऑर्डर रहता है सफिक्स ALES पे खत्म होता है, ALES। प्लांट ऑर्डर नेम एंड्स विद सफिक्स ALES। ठीक है। प्लांट फैमिली नेम, प्लांट का जो फैमिली नेम होता है सफिक्स CEAE पे खत्म होता है। जितने भी प्लांट के फैमिली नेम्स हैं CEAE पे खत्म होता है। देखिए जैसे सोलानेसी, तो समझ जाना ये तो प्लांट की फैमिली है। सोलानेसी मतलब ब्रिंजाल, पोटैटो, टोमेटो एंड पेटूनिया प्लांट। पेटूनिया एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये सोलानेसी फैमिली में आ रहा है। याद रखना CEAE बोले तो फैमिली नेम, प्लांट की फैमिली नेम। आइडे, IDAE मतलब क्या है, एनिमल फैमिली नेम। ओके। प्लांट का ऑर्डर क्या आ रहा है हमेशा सफिक्स में, प्लांट का ऑर्डर खत्म हो रहा है ALES पर। प्लांट ऑर्डर नेम ऑलवेज एंड्स विद सफिक्स ALES।
ओके, ठीक है। चलिए पहले नेक्स्ट और एक चीज लिखना है हमारे को, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट प्लांट। क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट किंगडम, व्हीट का लिखना है। व्हीट, व्हीट प्लांट का क्लासिफिकेशन किंगडम प्लांट आएगा, डिवीजन एंजियोस्पर्म आएगा, इट इज आल्सो फ्लावरिंग प्लांट, क्लास मोनोकॉट आएगा। ये व्हीट प्लांट की क्लास आएगा मोनोकॉटिलिडन, ऑर्डर इज गोइंग टू बी पोएल्स, फैमिली इज गोइंग टू बी पोएसी, जीनस ट्रिटिकम, स्पीशीज आ रही है आसटाइवम। ट्रिटिकम आसटाइवम जो है ये साइंटिफिक नेम है व्हीट प्लांट का, ट्रिटिकम आसटाइवम। सो इसकी फैमिली का नेम होगा पोएसी, ऑर्डर का नेम होगा पोएल्स, और ये क्लास इसकी मोनोकॉटिलिडन है, डिवीजन एंजियोस्पर्म। रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट द मैच फॉर व्हीट क्लासिफिकेशन और पोटैटो क्लासिफिकेशन, और जितने आपको मैं बता रहा हूं यहां पर उतने जरूरी हैं। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको बता रहा हूं मैं यहां पर, देखिए आपको टेक्सोनॉमिक एड्स क्या होता है। टेक्सोनॉमिकल एड्स, taxonomical aids mean the things which are helping for easy identification, nomenclature and classification of organism. The things which help in easy identification of plants and animal, they are called taxonomical aids. And taxonomical aids में आ रहा है देखिए botanical garden. You can visit a botanical garden to see some of the medicinal plant or unknown plants for you, or you can go for zoological park to see some of the wild animals, zoological park, or you can go for museum, or you can go for herbarium, म्यूजियम, हर्बेरियम, ठीक है। इवन टेक्सोनॉमिकल एड्स में आ रहा है कीज, कीज आर आल्सो टेक्सोनॉमिकल एड्स। व्हाट आर टेक्सोनॉमिकल एड्स? टेक्सोनॉमिकल एड्स मतलब जो हेल्प कर रहे हैं आपको इजी आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में हेल्प कर रहे हैं। बोटानिकल गार्डन मीन्स द प्लेस वेयर XC2 conservation is carried out. XC2 conservation, XC2 conservation मतलब conservation of plants and plants or animals outside their natural home. Botanical garden में हम क्या करते हैं, फॉरेन स्पीशीज ऑफ द प्लांट आर ब्रॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज से हम प्लांट स्पीशीज मंगाते हैं, XC2 कंजर्वेशन में रखते हैं। XC2 conservation outside the natural home. In botanical garden, each plant provided with a label, provided with a label, with a label, label रहेगा वहां पर, और वो लेबल में क्या रहेगा देखिए, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, फैमिली नेम। कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, फैमिली नेम, तीन चीजें रहेंगे। Botanical garden means it is the collection of exotic plants, threatened plants. What are exotic? Exotic means the species which are brought from other countries. दूसरे कंट्री से मंगाए हुए प्लांट्स स्पीशीज को हम एक्सोटिक बोलेंगे। बोटानिकल गार्डन में होंगे एक्सोटिक प्लांट्स and threatened plants also. Threatened species means the species which are having risk of extinction, risk of extinction. अगर बोटानिकल गार्डन जाएंगे आपको तो बोटानिकल गार्डन में जो स्पीशीज दिखेंगे आपको, जो प्लांट्स मिलेंगे बोटानिकल गार्डन में, दोज आर एक्सोटिक। एक्सोटिक मतलब दे आर ब्रॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज and they have threatened species. Threatened का मतलब क्या है, they are having high risk of extinction. तो ये है botanical garden.
ओके, सम ऑफ द फेमस बोटानिकल गार्डन्स लिख लेना चाहिए आप नोट्स में, सम ऑफ द फेमस बोटानिकल गार्डन। देखिए, बोटानिकल गार्डन बोलते ही हम नाम लिखेंगे, बोटानिकल गार्डन, रॉयल बोटानिकल गार्डन, रॉयल बोटानिकल गार्डन इंग्लैंड में है। देखिए, इंग्लैंड में वर्ल्ड फेमस बोटानिकल गार्डन, रॉयल बोटानिकल गार्डन इंग्लैंड में क्यू क्यू बोल के प्लेस है, वहां पर मिलेगा आपको ये। यू कैन विजिट दिस रॉयल बोटानिकल गार्डन टू सी एक्सोटिक स्पीशीज, ऐसे स्पीशीज जो आपके कंट्री में नहीं मिल रहे, दूसरे जगह पर है, ऐसे प्लांट देख सकते हैं आप रॉयल बोटानिकल गार्डन में। एंड देन IBGH, IBGH शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इंडियन बोटानिकल गार्डन, याद रखने में आसानी होगी आपको। इंडियन बोटानिकल गार्डन, H फॉर कहां पर मिलने वाला है ये, हावड़ा, हावड़ा में मिलेगा। देखिए, इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा, ठीक है। जी के बाद क्या आता है, H, IBGH, इंडियन बोटानिकल गार्डन तो याद रखना है, प्लेस का नाम याद रखने में मुश्किल हो रहा, तो क्या करना, जी के बाद क्या आएगा, H, इंडियन बोटानिकल गार्डन और NBRI, व्हाट इज NBRI, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में मिलेगा। देखिए, और आपको लाल बाग कर्नाटक में मिलेगा, लाल बाग बोटानिकल गार्डन, लाल बाग बोटानिकल गार्डन यू विल गेट इन बेंगलोर, बेंगलोर में मिलेगा लाल बाग। सो दीज बोटानिकल गार्डन आर फेमस फॉर कलेक्शन ऑफ रेयर प्लांट्स, रेयर प्लांट्स मिलेंगे आपको यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या है बताइए, हर्बेरियम, हर्बेरियम है कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्रेस्ड, ड्राइड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंस हैं। लेकिन यहां पर जो हर्बेरियम है, हर्बेरियम में डेड स्पेसिमेन है, ये डेड प्लांट स्पेसिमेन है। बोटानिकल गार्डन में यू कैन सी लाइव स्पेसिमेन, हर्बेरियम में मिलेगा आपको डेड स्पेसिमेन ऑफ द प्लांट, ओके, डेड स्पेसिमेन। एंड टू प्रिजर्व दिस हर्बेरियम शीट व्हाट वी यूज, mercury chloride, HgCl2 is used as preservative, प्रिजर्वेटिव, बैक्टीरिया फंगस इट शुड नॉट डैमेज हर्बेरियम शीट, इसके लिए हर्बेरियम शीट को प्रिजर्व करने के लिए मर्क्यूरी क्लोराइड यूज करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड हर्बेरियम शीट का साइज कितना है, स्टैंडर्ड हर्बेरियम शीट का साइज है 20x5, 20.5, 20 feet 5 inches into 21 feet 0.5 inches। देखिए, यहां पर क्या लिख रहे हैं हम, 20.5 इंचेस इंटू 21.5 इंचेस, ये क्या है, हर्बेरियम का एक साइज बताया जा रहा है, स्टैंडर्ड हर्बेरियम बता रहे हैं, स्टैंडर्ड हर्बेरियम साइज है, ओके। सो हर्बेरियम शीट जो है, हर्बेरियम शीट मीन्स इट इज जस्ट लाइक दिस, एक पेपर होता है, ठीक है, इसकी हाइट होना चाहिए, लेंथ 20 इंचेस होना चाहिए, ठीक है। अपॉन दैट हर्बेरियम शीट वी पेस्ट ए प्लांट डिस्प्लेइंग बोथ वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड
रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर हर्बेरियम शीट के ऊपर एक ऐसा प्लांट ड्राई करके प्रेस करके स्टिक कर देते हैं एंड देन वी राइट राइट कॉर्नर साइड ऑफ herbarium sheet, right? We write common name of the plant, English name of the plant, scientific name of the plant, family name of the plant, who collected, collector's name, what information is present on herbarium sheet. Herbarium contain information like information. What are the information on herbarium sheet? Information on herbarium sheet. Herbarium sheet should display information just like common name of the plant, scientific name of the plant, okay, English name, even we write English name also, English name to the plant, common name, scientific name, English name, and we also write collector's name, who collected this, collector's name, date of collection, place of collection, family name of the plant, family name of the plant. कई बार नीट में से क्वेश्चन आते हैं, हर्बेरियम इज नॉट हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर, हर्बेरियम इज नॉट हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर. इवन यू कैन सी इन योर मॉड्यूल में आपके देख सकते हैं पेज नंबर 4 के ऊपर नीट फेज 2 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4. द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन. हर्बेरियम शीट में किसका इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा? डेट ऑफ कलेक्शन. क्या हर्बेरियम शीट में डेट है? यस, डेट तो है. नेम ऑफ कलेक्टर, यस, कलेक्टर्स नेम भी है. लोकल नेम भी है, यस, कॉमन नेम इज नथिंग बट लोकल नेम. Yes, what is not there in herbarium sheet? Whether herbarium sheet is having height of the plant? No, herbarium is not having height of the plant. Height of the plant is not present in herbarium sheet. तो इतना आप याद रखिए हर्बेरियम के बारे में. नेक्स्ट, देखिए नीट 2016 का क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऑप्शन मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है. इन वन साइड गिवन फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है. अभी अभी हम ये करके आ रहे हैं क्वेश्चन. ये कॉलम 2 में दिया हुआ है डिप्टेरा. सेकंड दिया हुआ है अर्थ्रोपोडा. थर्ड वन इज गिवन म्यूजाइडे. फोर्थ वन इज इंसेक्टा. इसको आप मैच द फॉलोइंग करना है. बताइए क्या मैच करेंगे इसका? फैमिली का मैच क्या होगा? फैमिली नेम डेफिनेटली म्यूजाइडे. आइडे है ना, देयरफॉर फैमिली नेम होता है म्यूजाइडे. ऑर्डर कौन सा है? डिप्टेरा इज ऑर्डर ऑफ हाउस फ्लाई. क्लास है इंसेक्टा, 3 पेयर ऑफ लेग. और फाइलम कौन सा होगा? आर्थ्रोपोडा इज फाइलम. ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन था, आराम से कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है. Now I will give you meaning of हर्बेरियम की. हर्बेरियम क्या है पता चल गया अभी. की क्या है बताता हूं मैं, सुनिए अभी. म्यूजियम क्या है, कैटलॉग क्या है.
हर्बेरियम मीन्स ये तो ड्राइड स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट होते हैं, ड्राइड स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स, दे आर हर्बेरियम। ओके, की का मतलब क्या है? की इज ए कैरेक्टर, ए पेयर ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर। की मीन्स ए पेयर ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर, alternate character used for identification, used for identification। अल्टरनेट कैरेक्टर होते हैं वहां पे, जैसे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कैन फ्लाई, कैनॉट फ्लाई, कैन फ्लाई, कैनॉट फ्लाई, दिस इज अ पेयर ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर। ये अल्टरनेट कैरेक्टर है। एक स्टेटमेंट बोल रहा है कैन फ्लाई, एनिमल कैन फ्लाई, अनदर स्टेटमेंट इज सेइंग कैनॉट फ्लाई। कैन फ्लाई, कैनॉट फ्लाई, दिस सेट ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड कपलेट। क्या बोलेंगे इनको? कपलेट बोलेंगे इसको। सेट ऑफ कैरेक्टर इज कपलेट। ईच स्टेटमेंट ऑफ द कपलेट, ईच स्टेटमेंट, पेयर ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड कपलेट। पेयर में रहना चाहिए। ईच स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? ईच स्टेटमेंट को आप बोलेंगे लीड। ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड लीड। पेयर ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड कपलेट। पेयर ऑफ कैरेक्टर, हर एक स्टेटमेंट को लीड बोलेंगे। कैन फ्लाई इज वन लीड, कैन नॉट फ्लाई इज अनदर लीड। सो इसका मतलब है की का पता, की का मतलब क्या है समझ लीजिए आप। की मीन्स इट इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर। कैन फ्लाई, कैन नॉट फ्लाई, हैविंग रेड ब्लड, हैविंग व्हाइट ब्लड, यूजफुल, हार्मफुल, ऐसे अल्टरनेट कैरेक्टर्स को हम कपलेट बोलते हैं। और हर एक स्टेटमेंट कपलेट के लीड बोलते हैं। म्यूजियम में क्या होते हैं? डेड स्पेसिमेन होते हैं म्यूजियम में। डेड स्पेसिमेन, यस, डेड स्पेसिमेन प्रिजर्व्ड इन फॉर्मेलिन सोल्यूशन, फॉर्मेलिन सोल्यूशन में रखते हैं। नेक्स्ट कैटलॉग क्या है? अल्फाबेटिकली अरेंज्ड, अल्फाबेटिकली अरेंज्ड names of species, names of species, alphabetically arranged names of species found in an area, found in an area। एक एरिया में पाए जाने वाले स्पीशीज को अगर हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, जस्ट लाइक डिक्शनरी, डिक्शनरी में हम वर्ड्स देखते हैं, हाउ दे आर अरेंज, अल्फाबेटिकली दे आर अरेंज। अरेंज नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन आवर एरिया विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। यस, अगर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, डिटेल अकाउंट नहीं है, जस्ट ब्रीफली डिस्क्राइब है, तो कैटलॉग बोलते हैं। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहना चाहिए तो कैटलॉग। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए अब, म्यूजियम नॉट हैविंग फोटोग्राफ। याद रखिए, म्यूजियम नॉट हैविंग फोटोग्राफ। ठीक है, म्यूजियम में होते हैं डेड स्पेसिमेंट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, लेकिन इसमें फोटोग्राफ नहीं होते। ट्रू अबाउट म्यूजियम, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लास असाइनमेंट। ट्रू अबाउट म्यूजियम, लार्ज एनिमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड। लार्ज एनिमल जो होते हैं म्यूजियम में,
लार्ज एनिमल जैसे कि एक स्नेक है, पाइथन स्नेक है, पाइथन स्नेक है समझो। इसको कैसे प्रिजर्व करते हैं, ये तो इतना बड़ा होता है पाइथन स्नेक। हाउ टू प्रिजर्व इट, इसको प्रिजर्व करने के लिए स्टफ करते हैं, स्टफिंग। स्टफ्ड का मतलब है इनके सारे इंटरनल ऑर्गन निकाल फेंक देते हैं। ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड इंस्टेड ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स कॉटन इज इंसर्टेड, कॉटन लगा देते हैं अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्लोरा के बारे में पूछा है। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा, फ्लोरा इज एक्चुअली ए बुक। फ्लोरा is a book which contain detailed description, actual account of all description of all plant species found in an area। एक एरिया में पाए जाने वाले सारे स्पीशीज, प्लांट के स्पीशीज, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन पाया जाता है फ्लोरा बुक में। फ्लोरा बुक क्या होती है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज द टेक्सोनॉमिकल एड विच कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया एंड आल्सो प्रोवाइड द इंडेक्स टू प्लांट स्पीशीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के लिए पूरा डिटेल प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन मौजूद होता है फ्लोरा बुक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, बोटानिकल गार्डन मेनली सर्व द पर्पज ऑफ, बोटानिकल गार्डन मेनली सर्व द पर्पज ऑफ, क्या पर्पज है बोटानिकल गार्डन का? एक्सीटू कंजर्वेशन। बोटानिकल गार्डन क्या कर रहे हैं बताइए? बोटानिकल गार्डन से एडवांटेज है एक्सीटू कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स आउटसाइड देयर नेचुरल होम, आउटसाइड देयर नेचुरल एक्सी2। क्योंकि बोटानिकल गार्डन सेट करने के लिए आपको बहुत सारे फॉरेन स्पीशीज मंगाने पड़ेंगे, मेनी स्पीशीज ऑफ प्लांट फ्रॉम अदर कंट्रीज, अदर कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैन की क्लास बताना है आपको, मैन का क्लास बताना है और हाउस फ्लाई का ऑर्डर बताना है। कैन यू टेल मी हाउस फ्लाई ऑर्डर नेम एंड मैन क्लास नेम? मैन का क्लास है मैमेलिया, मैन की क्लास होगी मैमेलिया, हाउस फ्लाई का ऑर्डर होगा डिप्टेरा, हाउस फ्लाई का ऑर्डर होगा डिप्टेरा। ओके, नेक्स्ट देखिए, फैमिली ऑफ ह्यूमन, क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है व्हाट इज द फैमिली ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन की फैमिली बताइए। होमिनाइडे, ह्यूमन की फैमिली होमिनाइडे है। ट्रिटिकम आसटाइवम, ट्रिटिकम आसटाइवम मतलब वीट है, ठीक है ना, ट्रिटिकम आसटाइवम मतलब वीट है। वीट की आपको क्या बताना है? फैमिली नेम बताना है। व्हाट इज द फैमिली ऑफ वीट? ऑर्डर ऑफ वीट, फैमिली ऑफ वीट, ऑर्डर ऑफ वीट। यस, इसकी फैमिली होगी पोएसी और इसका ऑर्डर होगा पोएल्स, पोएल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा है, देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल सेम टाइप का होता है, डीएनए होता है। आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन एक्सेप्शनल केसेस, आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन वेरी वेरी फ्यू ऑर्गेनिजम्स। आरएनए जेनेटिक मटेरियल बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म में है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल सेम। दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वैरिंग डिग्रीज। Of course, all living organisms have common genetic material DNA, but to varying degrees। Varying का मतलब है having some variation,
थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है डीएनए में, स्पीशीज टू स्पीशीज। सो ऑफ कोर्स ह्यूमन में भी डीएनए है, लॉयन में भी डीएनए है, टाइगर में भी डीएनए, बट दोज डीएनए दे डिफर, some differences are there. All have common cellular organization. Yes, all living organisms have common cellular organization. 3 points बताया है. All living organisms have common genetic material, DNA. Second, all organisms have common genetic material, DNA, but to varying degrees. Some differences are there within the DNA. Yes, and all living organisms have cells. All of the above. Question number 10. In biological terminology, a group of similar organisms which are capable of interbreeding, जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, वो कौन से ग्रुप में आएंगे? स्पीशीज. स्पीशीज कैन इंटरब्रीड. स्पीशीज कैन इंटरब्रीड. यस, स्पीशीज इंटरब्रीड कर सकते हैं. यस, इंटरब्रीड कर सकते हैं स्पीशीज. नेक्स्ट. Next, unicellular organism. In unicellular organisms like amoeba, unicellular organisms like amoeba, growth and reproduction are same. Growth, cell division, reproduction are synonymous. Synonymous. क्या मतलब इसका? मतलब ये हो रहा है, अमोएबा में ग्रोथ का मतलब, सेल डिवीजन का मतलब, रिप्रोडक्शन का मतलब सेम है. सिनोनिमस. सिनोनिमस का मतलब क्या है? सेम मीनिंग. सेम मीनिंग. ठीक है. नेक्स्ट. Which of the following set does not contain defining character of living organism? Not contain defining. Growth and reproduction is not defining character. Growth and reproduction is not defining character of living organism. Even non-living things can also grow. Non-living things भी grow हो सकते हैं. There are several organisms which are not reproducing. Say for example, worker honeybees are not reproducing. Mule is not reproducing. ये सब मालूम है आपको. Where we use the word CEAE. CEAE वर्ड कहां पे यूज करते हैं? हम फैमिली में यूज करते हैं. प्लांट फैमिली नेम एंड्स विद CEAE. नेक्स्ट. ग्रोथ कंटिन्यूज अप टू डेथ. ग्रोथ कंटिन्यूज अप टू डेथ इन प्लांट्स. प्लांट में ग्रोथ हमेशा हमेशा होती है टिल डेथ. टिल डेथ कंटिन्यू होता है ग्रोथ. ठीक है. नेक्स्ट. Binomial nomenclature was introduced by which scientist? Carolus Linnaeus. In which book? कौन से बुक में लिखा गया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज फर्स्ट टाइम रिटन बाय कैरोलस लीनियस इन हिज बुक सिस्टेमा नेचरी. सिस्टेमा नेचरी बोल के बुक थी. लीनियस बुक है ये. लीनियस की बुक है. ठीक है. ओके. सो मेनी थिंग्स वी हैव सीन टुडे. अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे. आपके डाउट्स क्या हैं? कैन वी हैव योर डाउट्स स्टूडेंट्स? कैन यू सेंड योर डाउट्स? चैट बॉक्स.
साथ ही साथ आप जो है देखते रहिए, आपकी मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 15 है एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन। एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन मीन्स evolutionary classification means classification of organisms based on ancestral character, ancestor, phylogenetic system of classification को बोलेंगे। evolution means ancestor, ठीक है। for insecta what is the example, some student they are asking example for insecta। insecta का best example है हाउस फ्लाई, कॉकरोच। दे आर हैविंग 3 pairs of leg। जो एनिमल के पास 3 pairs of legs हैं वो सारे इंसेक्टा हैं। हिन्नी, हिन्नी देखिए हिन्नी कैसे बनता है ना, हिन्नी इज ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग मेल हॉर्स क्रॉस विथ फीमेल डोंकी। मेल हॉर्स फीमेल डोंकी के साथ क्रॉस करने से हिन्नी बनेगा, ठीक है। फ्लोरा, जैद अहमद पूछ रहे हैं फ्लोरा क्या है। फ्लोरा देखिए बुक का नाम है भाई। फ्लोरा इज ए बुक विच कंटेन डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द प्लांट्स प्रेजेंट इन ए गिवन एरिया। स्पाइडर देखिए, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, दीज आर नॉट इंसेक्ट्स, सॉरी। स्पाइडर को हम नहीं बोल सकते। स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्या हम स्पाइडर को इंसेक्टा बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्पाइडर को होते हैं 4 पेयर्स ऑफ लेग, इंसेक्टा में होते हैं 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। देखेंगे ट्रिक्स भी देखेंगे हम कल की क्लास में, ट्रिक्स भी देखेंगे, ओके। एम्फीबियंस के एग्जाम्पल देखिए, फ्रॉग है, फ्रॉग इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर एम्फीबियन विच कैन रेस्पायर थ्रू स्किन, गिल्स, ओके। हिन्नी, बिल्कुल हिन्नी म्यूल का अपोजिट है। म्यूल कैसे बनाया गया, मेल डोंकी क्रॉस विथ फीमेल हॉर्स। आप है ना ये मॉड्यूल के पूरे क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कर लो प्लस एनसीईआरटी कर लो, क्लास के नोट्स भी मेंटेन करना चाहिए अब, तब होगा। मैन्युअल क्या है, रेयान पूछ रहे हैं मैन्युअल क्या है। मैन्युअल कंटेन नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन ए गिवन एरिया, जस्ट नेम्स ऑफ स्पीशीज, नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन ए गिवन एरिया। डिटेल डिस्क्रिप्शन इज प्रेजेंट इन फ्लोरा बुक, ओके। टॉटोनीम का और एक एग्जाम्पल पूछना चाह रहे हैं। टॉटोनीम का और एक एग्जाम्पल है ना एक्सिस, एक्सिस है, एक्सिस, एक्सिस इज द डीर साइंटिफिक नेम। वीट का साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम असटाइवम है। मोनोग्राफ, रेयान पूछ रहे हैं मोनोग्राफ, मोनो मतलब सिंगल, मोनोग्राफ का मतलब है बुक विच कंटेन डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनी वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का डिटेल डिस्क्रिप्शन, फिशेस, एम्फीबिया, बर्ड्स, ऐसे। इंटरब्रीड का मतलब है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। फाउना का मतलब है एनिमल्स, फ्लोरा का मतलब प्लांट है, फाउना का मतलब एनिमल्स होगा। जोलॉजिकल पार्क, जोलॉजिकल पार्क हम क्यों रखते हैं भाई, zoological park is for studying animal behavior, you can visit zoo for studying animal behavior। होलोटाइप का मतलब पूछ रहे हैं पृथ्वी यादव, होलोटाइप का मतलब है ओरिजिनल स्पेसिमेन, कोई भी स्पीशीज का जो ओरिजिनल स्पेसिमेन होता है, ओरिजिनल कॉपी ऑफ द स्पीशीज इज कॉल्ड होलोटाइप, ओके। क्वेश्चन पूरे करिए आप, हाँ क्वेश्चन पूरा करना। देखिए मॉड्यूल लेने का मेथड क्या है, ये जो ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करे हैं वहां से ले सकते हैं, आप अपना एड्रेस देके यहां से हम पोस्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आप लोकल हैं तो यू कैन विजिट द कॉलेज और ले सकते हैं मॉड्यूल।
ठीक है, जितने साइंटिफिक नेम बुक में है बस उतने ही याद रखना है, और कोई आउटसाइड के याद रखने की जरूरत नहीं है। सिनोनिमस का मतलब है सेम मीनिंग, सेम मीनिंग, जिसके मीनिंग सेम होते हैं वो सिनोनिमस। ठीक है, सैयद जैद मेरा नंबर पूछ रहे हैं, मेरा नंबर क्या है, यहां पर लिख दे, मैसेज करता हूं। 86 यहाँ पे मैसेज कर चुका हूं मैं ये। और ये नंबर पे आप अपना कुछ भी अगर डाउट रहा तो इमेज रख सकते हैं, ठीक है, इमेज। एनसीईआरटी में कोई पैराग्राफ वगैरह नहीं समझ में आया है तो जस्ट यू कैन सेंड द इमेज। कैटलॉग, कैटलॉग और फ्लोरा में डिफरेंस पूछ रहे हैं। कैटलॉग इज हैविंग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, फ्लोरा इज हैविंग डिटेल डिस्क्रिप्शन, डिटेल, डिटेल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, विल स्टॉप हियर, टुमारो विल मीट अगेन, थैंक यू।